Today we will continue with our next part regarding the life processes, and this chapter is of class 10th, and today we will continue with our part number 5 regarding this chapter, that is life processes, and this chapter is of class 10th. And remember one thing, this syllabus is common for all the boards. इससे जो हमने previous lecture किया था बेटे, part number 1, part number 2 and part number 3 as well as part number 4, and today we will continue with our part number 5. तो उसमें जो हमने डिस्कस किया था बेटे, that is related the various modes of the holozoic nutrition in animals. उसमें previous section में हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि various modes of holozoic nutrition कौन से हैं. तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे बेटे, that is with chapter is life processes, and this chapter is of class 10th, and from the biology part, class is 10th. It is our part number 5, and this syllabus is common for all the boards, either CBSE board as well as state board. So let us start with our next part regarding the life processes. और next जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे वो कौन सा रहेगा, that is respiration. Respiration. This is the next topic regarding this chapter. So respiration क्या है बेटा? The process of the respiration. The process respiration takes place in two ways. In two ways. Two ways कौन कौन से बेटे? Number 1 is aerobic respiration. Aerobic respiration. And the second one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So these are the two modes of the respiration that takes place in the organisms. One is the aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. So first of all, we'll take the aerobic respiration. Aerobic respiration होता क्या है बेटा? Aerobic respiration. This is the first mode of respiration, that is aerobic respiration. It occurs with the help of oxygen. It occurs with the help of oxygen. ये किसकी हेल्प से टेक प्लेस करता है aerobic respiration? It occurs with the help of a oxygen, and it is responsible for the complete breakdown, and it is responsible for the complete breakdown यहाँ देख सकते हैं बेटे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है टेक्स प्लेस with the help of a oxygen, and it is responsible for the complete breakdown of hexose into carbon dioxide and water. So this is the aerobic respiration. It occurs in the presence of oxygen.
Yeah, it occurs with the help of oxygen and it is responsible for the complete breakdown of hexose into carbon dioxide and water. So this is the aerobic respiration. और अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं बेटे तो रिएक्शन कैसे होगी, C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen. So this is the formula of hexose. हमने कहा था it is and it helps in the complete breakdown of the carbon dioxide and water. Hexose का जो complete breakdown होगा that is in the form of carbon dioxide and water. 6CO2 plus 6H2O. तो इसमें ये complete breakdown कर जाएगा बेटे 6CO2 plus 6H2O plus 686 किलो कैलोरी. इतनी जो एनर्जी जो होगी वो वहां से रिलीज होगी. सो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि हम क्या कह रहे हैं कि इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इट हेल्प्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द हेक्सोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नेक्स्ट हम दूसरी लेते हैं बेटे. दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेशन. सेकेंड वन जो है बेटे दैट इज कौन सी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic respiration. This is the second respiration, anaerobic respiration, and it takes place in the absence of oxygen. It takes place in the absence of बेटे मैं साइड में हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं. इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर इनकम्प्लीट एंड देयर इज अ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर देयर इज अ कंप्लीट, सॉरी नॉट कंप्लीट, देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. देयर इज इनकम्प्लीट breakdown. Incomplete breakdown नोट कर सकते हैं बेटे. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? Incomplete breakdown of the substrate in the absence of oxygen is termed as anaerobic respiration. And here the reaction is, इसमें भी सेम रिएक्शन रहेगी बेटे. क्या रहेगी? C6H12O6. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हमने देख रहे हैं बेटे कैसे है. 2C2H5OH. This is ethyl alcohol plus 6CO2 plus 6CO2 plus not 6CO2 plus 2CO2. CO2 इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. तो यहां पर अगर हम एक्सोज का ब्रेकडाउन करेंगे, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है एंड इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 56 किलो कैलोरी. सो हियर देयर इज द रिएक्शन. तो बेटे यहाँ पर हमने देखा कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, टुडे वी एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द एनिमल्स एंड फर्स्ट प्रोसेस रिगार्डिंग द एक्सचेंज of the gases in the animals, that is respiration. And the process of the respiration, it is to be take place in two steps. One is the aerobic respiration and the second one is the anaerobic respiration. In the aerobic respiration, there is a complete breakdown of the substrate and there is a complete breakdown of the hexose into carbon dioxide and water. Whereas in case of anaerobic respiration, there is an incomplete breakdown of the substrate in the absence of oxygen. तो यहाँ पर ये दो reactions मैंने बनाएंगे बेटे. This is related with the aerobic respiration and this reaction is related with the anaerobic respiration. Next, अब हम continue करेंगे बेटे. अगला जो है
अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे वो कौन सा रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। This is the second step and most of the animals are aerobes. Maximum animals होते हैं बेटे वो aerobes होते हैं. Most of the animals are aerobes. मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, एरोब्स होते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू एनिमल्स। कुछ एनिमल्स को छोड़कर मैक्सिमम मेजोरिटी में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोब्स होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स। तो मैडम जो है साथ में ग्रीन टी भी लेंगे, ठीक है, जो कि अपने आप को बूस्ट कर सकें, एनर्जी को बूस्ट कर सकें। फ्यू एनिमल्स है बेटे, लाइक इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं जो एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स हैं जो कि हमारे एरोब्स नहीं है। मैक्सिमम जो हमारे एनिमल्स हैं दीज आर द एरोब्स एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स। सच एज कौन से हैं, सच एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, intestinal parasites like tapeworm। तो थोड़ा सा बच्चे मैं टी भी ले लेती हूं, तो आप देखिए इसमें कि हमारे मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं दीज आर द एरोब्स एक्सेप्ट अ फ्यू एनिमल्स सच एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स लाइक tapeworm। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट और जो राउंड वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स में कौन से हैं, लाइक tapeworm एंड राउंड वॉर्म्स like ascaris। यहां तक नोट करें बेटे अब आप ascaris। एंड नेक्स्ट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं बेटे इनके डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ये नहीं कि जो एक एनिमल का मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो सभी एनिमल्स का सेम होगा। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां पर अगर हम एनिमल्स लिखते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स के जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होंगे वो कौन से रहेंगे, हियर इट इज द मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन से हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन रहेंगे, different animals have different modes of respiration such as आपके हम पहले लेते हैं बेटे प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा। फर्स्ट इज द प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा। अब ये हमारा पहला एनिमल है प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा। अब ये जो हमारा एनिमल है प्रोटोजोन्स, और इसमें जो एग्जांपल दे रहे हैं हम अमीबा की, तो इसमें जिसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा बेटे दैट इज डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा पहला एनिमल आ गया जिसमें कि इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है दैट इज डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेकंड लेंगे बेटा। पहला हमारा क्या है, प्रोटोजोन्स अमीबा। इसमें जो उसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहेंगे मोड ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से रहेंगे, दैट इज डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोजोन जो है इसमें अमीबा जो है वो डिफ्यूज करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा स्पॉन्जेस एंड सेलेंट्रेट्स। स्पॉन्जेस एंड सेलेंट्रेट्स। अब
जो हमारे स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट है, इसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहेंगे दैट इज बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन रहेगा। इसमें बॉडी सरफेस respiration, body surface respiration. This is the second one, sponges and the coelentrates. Third one is the annelids, and most of annelids next one is annelids and most of the amphibians. Most of the annelids and most of the amphibians. अब नेक्स्ट है हमारा annelids and most of the amphibians. इसमें है क्यूटनेस या फिर स्किन रेस्पिरेशन, क्यूटनेस या फिर स्किन रेस्पिरेशन। इसमें जो उसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहेंगे इन एनिमल्स के, सच एज आपके कौन से एनालिड्स एंड मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, इसमें जो रहेंगे क्यूटनेस रेस्पिरेशन या फिर स्किन रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला एनिमल्स है बेटे वो हमारे इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड millipedes, insects, centipedes and millipedes, इनका जो रहेगा बेटे दैट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल। तो हम यहां देख सकते हैं बेटे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो कौन से रहेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। reptiles, birds and mammals, इनका जो रहेगा बेटे दैट इज लंग रेस्पिरेशन या पुलमनरी लंग रेस्पिरेशन। नोट कर सकते हैं बेटे इसको आप कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स है, मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं दे आर द एरोब्स एंड एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स सच एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल आपका कौन सा है, टैबवर्म या फिर राउंड वर्म सच एज एस्कैरिस। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और द मोड ऑफ रेस्पिरेशन द डिफरेंट एनिमल्स। प्रोटोजोन्स फॉर एग्जांपल अमीबा, हियर द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज दैट इज डिफ्यूजन थ्रू cell membrane. Next is sponges and coelentrates, and here the mode of respiration of the respiratory organs are body surface respiration. Next one is annelids. Annelids most या फिर most of the amphibians, इसमें जो mode जो रहेगा respiratory organs का that is cuteness और skin respiration. Next is insects, centipedes, millipedes. Here the respiratory organs are the tracheal respiration. The last one is reptiles, birds and mammals. यहाँ पर जो main क्राइटेरिया रहेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का दैट इज पुलमनरी या फिर लंग रेस्पिरेशन का। अब लास्ट हम लेते हैं बेटे स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, स्पेलिंग स्कॉर्पियंस के SCORPIONS। स्कॉर्पियंस। अब इसमें हम देखेंगे बेटे कि जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में वो क्या रहेगा, बुक लंग रेस्पिरेशन। बुक लंग रेस्पिरेशन, बुक लंग रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ पर बेटे ये हो गया है कि डिफरेंट मोड्स जो है
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या रहेंगे। तो मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो एरोब्स हैं, एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स को सच एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, सच एज स्टेवॉर्म एंड राउंडवॉर्म, सच एज एस्कैरिस, और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ वी शिफ्ट टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लोअर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा बेटे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है? हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस। दैट मीन्स देयर इज सम क्राइटेरिया दैट इज अडॉप्टेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उनके लिए क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, जिसके बिहार पर वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम देखेंगे बेटे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, अब लोअर ऑर्गेनिजम्स कौन से बेटे हमारे? सच एज प्रोटोजोन्स, organisms such as protozoans, these are the lower organisms. अब protozoans कौन कौन से होते हैं बेटे? such as amoeba and the second one is paramecium. So these are the lower organisms and the category is protozoans, and the common examples are amoeba and paramecium. Sponges like Cycon, second one is sponges, common example is Cycon. Sponges में कौन सा बेटे? Cycon. Lower organism protozoans में amoeba and paramecium, sponges में Cycon, coelentrates example is Hydra. So here the exchange of the gases in the lower organisms such as protozoans, for example, common example is amoeba and the second one is paramecium. And in case of sponges, for example, Cycon. And in case of coelentrates, the common example is Hydra. Coelentrates में हम कौन सा example ले रहे हैं? Hydra का. These are the lower organisms that takes place and coelentrates, Hydra, and there are no special structures. ये कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे हैं जहां पर there are no special structures. यहां पर कोई special structures नहीं है for the process of the respiration. There are no special structures, especially in case of the lower organisms such as protozoans, sponges and coelentrates. Protozoans में example दे दिया amoeba और paramecium की, sponges में example दे दिया Cycon की, coelentrates में example दे दिया Hydra की. So there are no special structures for the respiration, and in these animal groups every cell of the body is in direct contact. क्योंकि ये जो organisms है, in these organisms every body organ, in these organisms every body structure, हर एक body structure जो है, every body structure that is in direct contact with the water, that is in direct contact with the water, direct contact with the water. नोट कर सकते हैं बेटे आप इसको। इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, या स्पेशली कोई भी इसमें कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बल्कि इनके जो हर एक बॉडी ऑर्गन्स या हर एक बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर. सो देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द सराउंडिंग, क्योंकि इनका जो हर एक बॉडी सेल या फिर हर एक बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, क्योंकि हर एक बॉडी का सेल जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके साथ? वाटर के साथ. इस वजह से क्या होता है वहां पर कि देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस वजह से इनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है. सो देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट, सो देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इस वजह से यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में? बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ सराउंडिंग, बिटवीन द
ऑक्सीजन ऑफ सराउंडिंग, बिटवीन द, नोट कर सकते हैं बेटे, बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ सराउंडिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बॉडी सेल्स। ये नोट करना है बेटे आपको कि इनके जो हर एक बॉडी सेल्स होते हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the oxygen of the surrounding water as well as carbon dioxide of the body cells. So here it demonstrates the principle of the diffusion, so that's why it demonstrate the principle of diffusion, डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल्स, दैट्स व्हाई इट डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन। नोट कर सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, दैट्स why it is called body surface respiration। तो मैक्सिमम जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज प्रोटोजोन्स, सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, स्पॉन्जेस सच एज साइकॉन, सेलेंट्रेट सच एज हाइड्रा, तो इसमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनको कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, बिकॉज देयर बॉडी सरफेस या बॉडी सेल्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग एज वेल एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल्स, सो दैट्स व्हाई इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन। उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इनमें जो मेनली कौन सा रेस्पिरेशन होता है, that's why it is called as the body surface respiration। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन कहते हैं। नोट कर सकते हैं बेटे इसको। इनसाइड द सेल्स, अब अगर हम सेल्स के अंदर देखें, इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर, इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर, अब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है दैट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन इट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। So inside the cells, oxygen, it is used in the oxidation of glucose and inside the mitochondria to produce carbon dioxide, and inside the mitochondria, to produce carbon dioxide, नोट कर सकते हैं बेटे आप इसको, टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। तो यहां देख सकते हैं बेटे कि जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, स्पेशल इन केस ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर कोई का स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, चाहे वो प्रोटोजोन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं या फिर आपके स्पॉन्जेस हैं, देयर इज नो डायरेक्ट और देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि जो उनके बॉडी सरफेस होते हैं या बॉडी सेल्स होते हैं या बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द cells, that's why they follows the principle of the diffusion, and इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि इनमें जो मेनली रेस्पिरेशन है दैट इज अ बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। तो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम जो रेस्पिरेशन का केस होता है दैट इज बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन,
और इनसाइड द सेल्स, अगर हम सेल्स के अंदर देखते हैं बेटे, तो जो ऑक्सीजन होती है दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज. एंड अगर हम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, वाटर को प्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है बेटे अब आपका, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा. एरोबिक रेस्पिरेशन अमीबा. एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा. एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा. इसके ऊपर हमने एक डायग्राम देखनी है कि किस तरह से बनेगी. एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा. सो हियर द एरोबिक रेस्पिरेशन, इससे पहले हमने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है बेटे. The complete breakdown of the substrate in the presence of oxygen, that process is known as aerobic respiration. And in case of an aerobic respiration, there is no complete breakdown of the substrate in the absence of oxygen. तो अब हम इसमें देखेंगे बेटे, this is the diagram that is related with the aerobic respiration in amoeba. इस तरह से रहेगी इसकी डायग्राम. This is the aerobic respiration in amoeba. एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा. तो अब हम क्या देखेंगे बेटे, दिस इज द न्यूक्लियस. हियर इट इज द न्यूक्लियस. ये क्या है बेटा, हियर इट इज द न्यूक्लियस. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑक्सीजन का जो दैट इज ऑक्सीजन इनटेक है अंदर की तरफ को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर बेटा इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द अमीबा. Oxygen that is to be inside the body structure and carbon dioxide that is outside the membrane. Oxygen is inside the plasma membrane, whereas carbon dioxide is outside the plasma membrane. So here it is the. So here beta, we complete the exchange of the gases in the lower organisms. How the exchange of the gases in the lower organisms takes place. जो लोअर ऑर्गेनिज्म से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. तो उनका जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द सराउंडिंग वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द सेल्स. इस वजह से वो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल को वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. और इनमें कोई भी जो बॉडी इनकी जो रेस्पिरेशन होती है, सो दैट्स व्हाई देयर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन. और यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि हाउ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस. इससे पहले हमने कहा कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इनके डिफरेंट मोड्स होते हैं रेस्पिरेशन के, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. तो किस तरह से वो उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है. उससे पहले हमने देखी कि रेस्पिरेशन जो होता है इट मेनली अकर्स इन द टू प्रोसेसेस, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बेटे हमने चैप्टर बायोलॉजी का रिलेटेड विद द क्लास 10th वो हमने कंप्लीट कर लिया है. और इसमें एक दो टॉपिक्स हमारे थोड़े और बचे हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में जो होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी विल कंप्लीट part number 1, part number 2, part number 3, part number 4 and part number 5 related with the chapter that is life processes.